whether our recording will have this. Sorry? Hello? हाँ सर. હા રેકોર્ડિંગ મેં સ્ટાર્ટ તો કર્યું છે લેટ્સ સી વોઇસ આવે છે કે કેમ બીકોઝ મારો વોઇસ જે છે that you are getting from my mobile and a screen and you are share I mean I shared the screen from computer of institute બરાબર let's see જોઈએ ચાલો uh, I request you to have a highest level of concentration over here. Now look at this. 193.55. Let me take one screenshot કારણ કે આ prices તો એમ જ move કરતા જ રહેશે and we are unable to see that. I just took up a screenshot and let me just put that screenshot because it's a live market, so damn sure the prices would keep on changing like anything. Yep, there it goes. Okay, chalo. So I just take up a screenshot and now I would be in a better position to show you what I want to show you. मैं market ने freeze कर दी दूसरा. I freeze the market by taking the screenshot. Okay. Now I request you to just concentrate on this part only. Exclusively. खाली अतला part ऊपर move कर. I mean, let us concentrate only on this part. Let's see what happens. Okay, there it goes. Now this is known as bid prices 193.60, 55, 50, 45, 40. This is known as offer price or ask price. Many a time it is known as ask, ASK, ask price. At any given point of a time, exchange always shows you top 5 buyers and top 5 sellers. Now top 5 buyer ni side par jo, who is the top buyer? Who can be the top buyer? Price na terms માં કહું તો જે સૌથી ઓછો ભાવ મૂકે કે જે સૌથી વધુ ભાવ મૂકે તે? Who is a top buyer? One who put the highest price to buy or one who put Highest price, sir. Highest price. Okay, very nice, very nice. Layman understanding. Layman understanding. Auctions થતા જોયું છે કોઈ દિવસ હરાજી થતા જોઈ છે મૂવીઝ વગેરેમાં भी હોય है ना, मूवीज सीरियल्स वगैरह में कभी आप देखे तो सो यहाँ पे वही हो रहा है. इट्स एन ऑक्शन. ये हराजी कर रहा है एक्सचेंज बैठ के, कुछ नहीं, वो प्राइस जिसने सबसे ऊपर प्राइस की बोली लगाई खरीदनार ने वो सबसे ऊपर आएगा. सो लुक एट द बायर साइड. 193.60 highest, second highest 55, third highest 50, fourth highest 45, fifth highest 40. of course जब ये 60 वाला हट जाएगा ना स्क्रीन से मतलब उसको खरीदी हो जाएगी. व्हेन दी इसको 2 इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं, एक बायर बैठा है. दिस इज वन नंबर ऑफ बायर wants to purchase 2 equity shares at a price of 193.60. समझ पड़े છે भाई? On contrary, Yes, sir. yeah, Yes, sir. on contrary, एक सेलर है जिसको बेचना है. कितने कितने सेलर्स है ऐसे? एक नहीं है, सॉरी 6 सेलर्स है. उस 6 सेलरों को मिलके कितने इक्विटी शेयर्स बेचने हैं? 2165. कोई ये 100 મૂક્યા હશે, કોઈ 50 મૂક્યા હશે, કોઈ 35 મૂક્યા હશે, જે भी હોય, पर सम टोटल इस 2165 शेयर्स बेचने हैं उसको, इन सब लोगों को, 6 लोगों को मिलके. एंड एट व्हाट प्राइस दे वांट टू सेल? 193.65. करेक्ट. नाउ सेलर में हु इज द बेस्ट सेलर? जो सबसे कम भाव में दे उसका सबसे पहले माल बिके सेलर में. बायर में जो सबसे ज्यादा प्राइस दे उसको सबसे ज्यादा जल्दी से माल मिल जाए, मतलब एसबीआई का शेयर मिल जाए. अ कॉमन लेमैन अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए नाउ लुक एट द सेलर साइड. जितने भाव ज्यादा वो लोग नीचे बैठे हैं. 65, 70, 75, 80, 85. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ जितना प्राइस कम वो नीचे बैठता जाएगा, यहाँ जितना प्राइस ज्यादा वो नीचे नीचे बैठता जाएगा. I assume that you try to understand what I'm putting in front of you, right? अब होगा क्या? Say for example right now राज मार्केट के अंदर एंटर होता है एसबीआई का शेयर खरीदने के लिए और उसको खरीदना है, अभी के अभी खरीदना है, राइट नाउ. क्या भाव पे खरीद पाएगा वो? So 190.
वन बाई वन। वो पैसे में बोलो ना, पैसे में बोलो ना, बाकी के दोनों तो रुपीस तो सेम है, सिर्फ पैसे में बोलोगे तो समझ आ जाएगा सबको। है क्या? 0.65। 65 के 60? 60। हाँ, कितने लोग? निधि आप 60 मान रहे हो इसको? हाँ सर। करेक्ट। क्यों 60? सर क्योंकि वो बायर के इसमें 60 है प्राइस और सेलर का 65 है। वेरी गुड बेटा। राज अभी के अभी आए और 60 लिखे, तो तुमको क्या लगता है, राज को पहले इक्विटी शेयर्स मिलेंगे या ये बंदा 1 नंबर का जो बैठा है 2 शेयर लेने के लिए उनको मिलेंगे? सर क्वांटिटी मैच हो जाएगा अगर डायरेक्टली तो। क्वांटिटी राज को 50 खरीदती है तो पहले किसको मिलेंगे? सर पहले फिर इसी को मिलेगा। सॉरी, आई मीन जो 1 बायर वाला है जिसको 2 क्वांटिटी खरीदना है उसी को मिलेगा। Exactly. So what I am trying to make you understand dear, to you all, not only to Nidhi, मार्केट सबसे पहले प्राइस देखता है। अगर बायर जो अभी फिलहाल सबसे पहले बायर बैठा है उससे जरा भी प्राइस ऊपर डालेगा ना तो उसको ऊपर कर देगा। जो ज्यादा प्राइस देने के लिए बैठा है सबसे पहले उसको माल मिल जाएगा, सबसे पहले उसको इक्विटी शेयर मिल जाएगा। किंतु अगर टाई हो गई तो, 2 लोगों ने सेम प्राइस डाल दी तो मार्केट फिर किसको देगा? जिसने पहले डाला उसको मिलेगा। सॉरी राज, एक मिनट हार्दिक, आप आंसर मत करो। हाँ राज बोलो, क्या बोल रहे हो आप? જેને સૌથી વધારે માંગ્યા હશે ને શેર તેનું। सॉरी, आई डिसएग्री। इस हिसाब से सर જેને સૌથી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં માંગ્યા છે ને શેર એનું થશે। डिसएग्री દીકરા, डिसएग्री। સર જેને સૌથી પહેલા જે પ્રાઇસ મૂકી હશે ને એને મળશે। एग्जैक्टली દીકરા, आई एग्री विथ हार्दिक आंसर। देखो राज, अगर जिसने ज्यादा मांगा है उसको ही देना तो तेरे मेरे हाथ में कभी शेयर आएंगे ही नहीं, राकेश झुनझुन वाला ही सब लेके जाएगा हमेशा, ठीक है ना? वो हाँ, जो क्वांटिटी में ट्रेड करता है उस क्वांटिटी में तू और मैं नहीं कर सकते। लेकिन एक्सचेंज के लिए हार्दिक कुकड़िया, जरीवाला राज, हिरेन पटेल या राकेश झुनझुनवाला सब सेम है। करेक्ट। उसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, उसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले प्राइस से मतलब है। अगर प्राइस में टाई होता है तो दूसरा पेमेंट, आई मीन सॉरी, द सेकंड क्राइटेरिया इज टाइम, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाई। नाउ लेट मी शो यू वन पीपीटी। हमने कुछ एक वर्ड लिखा था, प्राइस टाइम प्रायोरिटी, कहीं पे लिखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। Even on that day we discussed that anytime market works only on, yes, there it goes. Can you see this PPT? Yes, sir. Yeah. Now I'll just zoom up this word. Market operates on price, time, priority. बेटा उसमें पण प्राइस वर्ड पहले लिखा है, मतलब पहली प्रायोरिटी प्राइस को जाती है, तो 5 पैसा ऊपर रख एंड तुझे पहले दे देगा। बरोबर। भले ही बाकी का तेरे से 5 पैसा कम वाला सुबह 9 बजे से 9:15 बजे से क्यों ट्रेड डाल के ना बैठा हो, कोई नहीं ना, तू ज्यादा प्राइस में खरीदने आया है ना, ये વધુ प्राइस आप पहले મળે। बट अगर प्राइस में टाई होती है, सेम प्राइस वाले लोग बैठे हैं, तो फिर प्राइस की प्रायोरिटी चली जाएगी ना, ये कट हो गया प्राइस प्रायोरिटी। सो फिर एक्सचेंज देखता है सबसे पहला सौदा किसने डाला था, वो एंटर्ड फर्स्ट, एंड देन दिस इज प्रिसाइसली हाउ द ट्रेड मैचिंग हैज हैपेंड ऑन एक्सचेंज। नाउ अब आते हैं रियलिटी पे, थोड़ी और इसको डीप में लेके चलते हैं। हमने कहा राज को खरीदना है एसबीआई। अज्यूम करो राज को 5,000 शेयर खरीदने हैं, 5,000 राइट ना, अभी के अभी खरीदने हैं। उसने एक्सचेंज को कहा, सॉरी उसने अपने ब्रोकर को कहा भाई चल जे भाव चालतो है ने उपाड़ी लेजो 5,000 शेयर।
जब आपका ब्रोकर आपका ट्रेड डालेगा तो निधि, यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, राज को जो मिलने वाला है ना, द अमाउंट विच राज विल बी गेटिंग, दैट इज दिस अमाउंट 193.65। ये प्राइस पे राज को मिलेगा, अभी के अभी खरीदना है तो। अगर वो 60 पैसा डालता है प्राइस, तो राज इस बंदे के नीचे, मतलब इसके साथ में यहाँ पे, लेकिन 5,002, ये जो दो है ना, ये दो की जगह पे फिर तुझको 5,002 दिखना चालू हो जाएंगे, और वन बायर की जगह पे ना टू बायर्स दिखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एक जो पहले से बैठा है वो, एंड राज विल बी सेकंड वन। दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 5,002, एंड राज वेट करेगा कब तक, जब तक कोई आके उसको 60 पैसे में इक्विटी शेयर दे के जाए, तब तक। But if Raj wants right now, he has to buy at 65 paisa. He has no other option but to buy at 65 paisa. Correct? अब आते हैं 65 पैसा में कितने इक्विटी शेयर्स बिकने के लिए पड़े अभी मार्केट में? 2165। राज को कितने इक्विटी शेयर्स चाहिए? हमने क्या कहा? हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स राज वुड लाइक टू बाई? 5,000। बराबर, राज को चाहिए 5,000 शेयर्स। Okay, what will happen now? Can anybody help me out? सब पार्शली एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे 2165, बाकी के अमाउंट, बाकी के जो शेयर्स हैं उसको बाद में ये प्राइस के लिए वेट करना पड़ेगा। ये प्राइस के लिए वेट करना पड़ेगा, तो अब राज कहाँ दिखेगा आपको पता है? What will happen now? मे बी सर 5 पैसे बढ़ा के वो दूसरे ले लेगा। नहीं बढ़ाना है उसको, अभी 65 पे ही रख, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन? नाउ जस्ट इमेजिन, 2,2165 शेयर्स तो राज को मिल जाएंगे पक्का। बाकी के बचे राज के 5,000 में से 2,165 निकाल दीजिए, करीबन 2,935 बचेंगे। 2,935 2835 हाँ 2,835 चलिए ना, 2,835 ठीक है। तो ये 2,835 जो शेयर्स हैं 2,835, वो क्या भाव पे लेने बैठा है राज? 65 पैसे पे। करेक्ट? सो राज यहाँ पे 65 पैसे पे 2,835 शेयर्स, वन बायर, ऐसा दिखने लगेगा। यानी कि जो 60 पैसा है वो एक स्टेप नीचे चला गया होगा, वो दूसरे नंबर पे आएगा। 55 जो पैसा है वो तीसरे पे, 50 चौथे पे, 45 यहाँ पे, और ये जो एंट्री है ना, ये आपको दिखना बंद हो जाएगी। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लास्ट की आपकी एंट्री है ना, वो दिखना आपको बंद हो जाएगी, फिर यू कैन नॉट एबल टू सी दिस लास्ट वाली एंट्री, ये हट जाएगी। हाँ, ये एंट्री आपको नहीं दिखेगी अब। हाँ, रादर आपकी एंट्री क्या होगी फिर? टॉप 5 बायर क्या हो गए? सबसे ऊपर बायर में बैठा होगा राज 65 पैसा, ऑफकोर्स आगे 193 लिखा होगा, मैं जस्ट आई एम अवॉइडिंग दैट पार्ट। हाँ, 193.65 में 2,835 एक बायर, फिर नीचे लिखा होगा 193.60 में 2 शेयर्स एक बायर, फिर नीचे लिखा होगा 193.55। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 5 धीरे धीरे चले नीचे चले जाएंगे, सब एक एक स्टेप नीचे उतरेंगे, और सबसे ऊपर राज यहाँ बैठा होगा। व्हाट विल हैपन ऑन सेलर साइड? सेलर के साइड पे ये वाली एंट्री जो है वो दिखना बंद हो जाएगी। आप सेलर साइड पे नाउ यू विल नॉट गेट दिस एंट्री। तो रादर अब ये 170 जो है ना, 193.70 पैसा, वो बन जाएगी पहली एंट्री। 75 पैसा दूसरी पे आएगी, 80 पैसा थर्ड नंबर पे आएगी, 85 पैसा 4 नंबर पे आएगी, और इसके नीचे 193.90 पैसा वाला जो होगा, मुझे जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा तो सही कोई। हाँ, जैसे मान लीजिए उसने 50 शेयर खरीदने के लिए वो बैठा है एक बंदा। हाँ, तो ये एंट्री अब 5वें नंबर पे आ जाएगी। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। ये मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ बिकॉज आई फ्रीज द स्क्रीन, मैंने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया। अब इसी चीज को फॉर फ्यू सेकेंड्स ट्राई टू एनालाइज हाउ एग्जैक्टली मार्केट इज डूइंग द सेम थिंग। अब इसको देखने की कोशिश करो। लेट्स ट्राई टू get how market operates. Yo, there it goes.
Just concentrate on this side. Look at this. क्या हो रहा है? ये 25 पैसे में इतने लोग हैं, हाँ, कोई और लोग जुड़ गए। 30 पैसे वाला आया तो 25 नीचे चला गया था। अगेन 30 पैसे वाला का काम हो गया तो 25 वापस ऊपर आ गया। राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये किस तरह से काम कर रहा है। Just concentrate, just view this. I mean, for a few minutes, just view this cycle and you will come to know that how it works. Look at the buyer side first, then look at the seller side. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So just concentrate on this one. You will see that. And what comes to now last? I want to show you the last price or trading price. Now this is the trading price. Now you can concentrate on this. क्या भाव पे ट्रेडिंग हो रहा है? जो लास्ट में सौदा पड़ेगा ना, विच एवर इज द अमाउंट, क्योंकि हर बार राज बाय करने के लिए ज्यादा आ जाता है। So this is how the last trading price has keep on increasing. This is what it shows that कल के मुकाबले as compared to yesterday's price आज कितना प्लस या माइनस हुआ and परसेंटेज में कितना प्लस या माइनस हुआ. This shows green, that means it is an uptrend. अगर आज नीचे गया होगा प्राइस then it will show it as the negative and downtrend. I hope you can understand this. So this is what we call it as trading mechanism or order matching mechanism. Sorry. Now, I want you to make you understand the different what you can say conditions. तो हमने दो चीज तो देख ली भाई कि एक तो होगी प्राइस कंडीशन, दूसरी होगी टाइम कंडीशन. प्राइस टाइम प्रायोरिटी, करेक्ट. सो टाइम कंडीशन के बेसिस पे दो तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं. One is a day order, other one is IOC order. This is known as I stands for immediate, O or C cancel. So this order is known as IOC order, immediate or cancel. Now what is day order? Day order मतलब मैंने कोई भी order डाला. Say for example, let me see the actual. में SBI का कीमत चल रहा है 193.20 30 and all these things. Let me show you one trade. I mean one order that I punched today. आज मैं एक ऑर्डर पंचिंग करके बैठा हूँ, मतलब ऑर्डर डाल के बैठा हूँ. आई एम वेटिंग. आउट से तो था ही, जस्ट से नहीं आउट से तो लेट इट बी. सो आई विल शो यू. देयर इट गोस. ये कुछ ऑर्डर्स मैंने डाले हैं. इफ यू कैन सी दिस ऑर्डर. लुपिन करके एक कंपनी है. इट्स अ फार्मास्यूटिकल फर्म. I want to sell. And at what price I want to sell? 951.20. What is the present price of Lupin? 943. मतलब मेरा कीमत अभी तक नहीं आया है. So what happens? Nothing. वो जो 5 आपको दिख रहा है, मैं कहीं पे 50वें नंबर पे, 100वें नंबर पे, 150वें नंबर पे बैठा हूँ. You cannot see my price. If I'll click on Lupin, वो जो प्राइसिंग वाला जो 5 बायर सेलर्स जो हम बता रहे थे आपको, देयर इट गोस. ये है लुपिन का 5 बायर 5 सेलर वाला चार्ट. So yeah, there it goes. Look at this. 5 buyers and 5 sellers. You can see. I hope you can understand this. अब वही है, ये बीड प्राइस, ये सेल प्राइस. लोग खेल रहे हैं 492, 492.85 वगैरह. सो कहीं पे प्रिज्यूम करो अभी तुझे 5 ही दिख रहा है, कहीं पे नीचे 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 और मेरे जैसा 950 वाला भी बैठा होगा, कोई 980 वाला भी बैठा होगा.
कोई 1040 वाला भी बैठा होगा, नीचे 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 जाता ही जाएगा ये, क्योंकि जैसे अगर प्राइस बढ़ा तो ग्रेजुअली दिस विल मूव अप। 950 वाले का भी सौदा होगा अगर प्राइस आया स्क्रीन पे, तो अगर नहीं आया तो व्हाट विल हैपन, अगर आज की तारीख में 950 951 का प्राइस आता नहीं है, व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस विल नेवर कम टू 951? एक्सपायर्ड हो जाएगा ये ऑर्डर का स्टेटस। हाँ जी, आज शाम 3:30 बजे तक ये ऑर्डर यहाँ पे पड़ा है। जैसे ही 3:30 बजे हो गए, 3:30 बजे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, दिस इज नोन एज पेंडिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर स्टेटस में मैंने ऑल लिखा है ना, अभी मैं क्लिक करता हूँ पेंडिंग, लुक एट दिस, पेंडिंग एक ही है मेरा ऑर्डर स्टेटस। सो मेरे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है मेरे, यानी मेरे जैसे जितने भी बायर और सेलर के, वो सारे के सारे ऑर्डर को रात यानी 3:30 बजे, सॉरी 3:30 बजे एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, ऑटो डिलीट। सो इस तरह का जो ऑर्डर है, दिस इज नोन एज डे ऑर्डर। डे ऑर्डर मतलब एक दिन तक वो ऑर्डर वैलिड है। द ऑर्डर इज वैलिड फॉर द डे, एक दिन तक वो ऑर्डर वैलिड है। दिस इज कॉल्ड डे ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर का नाम है, द अनदर टाइप ऑफ ऑर्डर इज आईओसी। कैन एनीबडी नाम से, कैन एनीबडी ट्राई टू हेल्प मी आउट? આ નામ પરથી શું સમજ પડે આપણને? આ કેવો ઓર્ડર હશે? सर ये कैसा ऑर्डर होगा? हेलो हाँ बोलो। सर, मतलब मैंने हाँ, हाँ। अगर प्राइस कोट किया है कि एसबीआई का 192 अगर जाता है तो मेरे 50 शेयर खरीदने हैं। अगर गया हाँ। तो ठीक है, इमीडिएटली वो हो जाएगा, और अगर नहीं आता है उस टाइम पे प्राइस एग्जैक्टली वो, तो कैंसिल हो जाएगा। यस, द ओनली डिफरेंस, जो पुराना वाला जो है ना ऑर्डर, यानी कि डे ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर टाइप 1, उस ऑर्डर टाइप 1 में मैं 192 डालूंगा ना, तो मैं 192 में आराम से बैठा होऊंगा। जैसे ये लुपिन का जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं सुबह 10:30 बजे के आसपास में ट्रेड डाल के बैठा हूँ, मतलब ऑर्डर डाल के बैठा हूँ 10:30 बजे से वेट कर रहा हूँ, आया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, नहीं बेचना मुझे, बराबर। लेकिन अगर मैं उसी ऑर्डर को आईओसी ऑर्डर के नाम से डालता, राइट, क्या होता, अभी के अभी अगर कोई मुझे देता है, मतलब मेरा माल ले लेता, आई वांट टू सेल लुपिन, तो अगर अभी के अभी कोई मेरे लुपिन खरीदता है 951 में, अभी के अभी, राइट नाउ, इमीडिएटली, तो मैं बेचूंगा। अगर अभी के अभी नहीं खरीदता है तो मुझे नहीं बेचने का किसी, मुझे, आई कैन नॉट वेट फॉर द होल डे। हाँ, मेरा लेक्चर है, मुझे जाना है, मुझे तो मतलब इमीडिएटली मुझे काम करना है। अगर कोई करता है तो ठीक है, ना करे तो इमीडिएटली कैंसिल कर दे मेरा ऑर्डर, बस। दिस इज नोन एज आईओसी ऑर्डर। या तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो, और अगर ना हो तो वो इमीडिएटली कैंसिल हो। दिस इज नोन एज आईओसी ऑर्डर। मतलब मुझे वेटिंग में, लाइन में बैठना नहीं है 10:30 बजे से ऑर्डर डाल के 3:30 बजे तक ना, मने अब બધું नहीं पावे। या तो अभी के अभी सौदा करो या फिर मुझे कैंसिल करो। सो अगर आप उस तरह का ऑर्डर पिकअप करते हो, आई रियली डोंट नो वेदर शेर खान प्रोवाइड्स मी दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट, बट लेट मी ट्राई। अगर मेरे पास में वो ऑर्डर फैसिलिटी है आईओसी की, तो लेट मी ट्राई टू पुट दैट ऑर्डर। So let me put the same order with Lupin. मुझे प्राइस डालना है 951. This is my order validity. Let me just show you. ये है ऑर्डर वैलिडिटी, ये रहा। कैन यू सी दिस आईओसी? देखा है भाई? यस सर। यस सर। यस, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे ऊपर जो है वो डे ऑर्डर है, जो हमने पहले समझा ना। मेनी ब्रोकर्स कॉल देम एज जीएफडी। जीएफडी એટલે गुड फॉर डे, एक दिन के लिए अच्छा, गुड फॉर डे। सो दिस इज अ डे ऑर्डर। मैं अभी फिलहाल डे ऑर्डर डाल के बैठा हूँ। लेट्स सी, नाउ आई विल बी पुटिंग एट, लेट मी पुट एट सम अदर प्राइस। हाँ, तो आपने डिफरेंस खबर पड़े। 961 अभी के अभी कोई मेरा लुपिन 10 शेयर्स 961 में बाई की जगह मुझे सेल करना है। मुझे सेल करने हैं 961 में अभी के अभी। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई गांडू हो भाई 943 में મળતા હોય,
अगर अवेलेबल 943 में है तो मेरा कोई 961 में क्यों खरीदेगा, बट फिर भी लेट मी पंच दी ऑर्डर। ये ऑर्डर में आई विल बी पुटिंग अप दिस ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर। ओके, चलिए नाउ वी गेट दिस समथिंग। एक यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट का एक आई गॉट दैट, लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू एंड अगेन यहाँ पे मैं एक नया फाइल में आपको एक स्क्रीनशॉट रीड करवाता हूँ। व्हाट वाज दैट एक्नॉलेजमेंट मैसेज फ्रॉम, there it goes. Let me just select and crop this. Sorry. Now read this. Read this message जो मुझे शेर खान ने भेजा है। हाँ, NSC कैंसल्ड ऑर्डर। कितने 10 तारीख 12:39 34 सेकेंड्स को NSC ने ऑर्डर आपका कैंसिल किया, बराबर। ऑफ कोर्स वो कैंसिल ही करने वाला था, मुझे पता था वो IOC था। मुझे इमीडिएटली मेरे शेयर को 961 में खरीदता जबकि प्राइस चल रहा था 943। कोई पागल बायर तो नहीं होगा ना कि अगर उसको 943 में चीज मिल रही है लुपिन का शेयर, फिर भी 17-18 रुपए ज्यादा देके मेरा शेयर खरीदे, नहीं होना था। ऑफ कोर्स, सो इट वाज कैंसल्ड बिकॉज द टाइप ऑफ ऑर्डर वाज IOC, immediate or cancel. Now even if I go and will check that, मैं अपने ऑर्डर बुक में जाऊं, ऑर्डर बुक मतलब रोज जितने भी ऑर्डर्स आपने रखे हैं वो, हाँ, एंड इन दिस ऑर्डर बुक इफ आई विल क्लिक ऑन कैंसल, लुक एट दिस, हाँ, आई होप यू कैन सी दैट कैंसल्ड हो गया मेरा ऑर्डर। 10 बेचने थे मुझे 961 के प्राइसेस पे, मेरा ऑर्डर टाइप था IOC, करेक्ट। बाकी के अगर ऑर्डर्स में आपको दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल पेंडिंग, सो देखिए वो क्या ऑर्डर टाइप है, GFD। I presume that you understand what I'm trying to. Yes, sir. Now coming on to the next type of order. So we understand what is day order and IOC order. Then goes price condition के हिसाब से मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है मैं अपने ब्रोकर को कहूं कि मार्केट ऑर्डर से ले ले, यानी कि अभी फिलहाल जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे ले ले। नाउ कमिंग टू दीपक की एक आर्ग्यूमेंट थी, अगर आप लोगों ने ठीक से सुनी हो तो। मैंने कहा था कि राज को 5000 शेयर चाहिए 65 पैसा में और बेचने वाले के सिर्फ 2100 समथिंग थे, तो बाकी के जो 2800 शेयर हुए बचे उसका क्या। तो दीपक ने एक आर्ग्यूमेंट किया था कि सर वो 5 पैसा एक्स्ट्रा डाल देगा और 65 की जगह 70 करके वो शेयर ले लेगा। अगर राज ऐसा करता है तो दिस इज नोन एज मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मीन्स विदाउट कंसिडरिंग द प्राइस, जो भी प्राइस पे मुझे मिले आई एम ओके विथ इट, મને લઈ લેવા છે राइट नाउ। 70 पैसे में 70 में भी सौदा खत्म नहीं हुआ तो 75, 75 पे भी नहीं हुआ तो 80, 80 में भी नहीं हुआ तो 85, 85 में भी नहीं हुआ तो 90, 90 में भी नहीं हुआ तो 95। જે પ્રાઇસ હોય તે પ્રાઇસ ચાલશે, પણ મને અત્યારે ને અત્યારે શેર્સ આપો। इफ दिस इज अ प्राइस कंडीशन, यानी कि मुझे प्राइस नहीं देखना है, मुझे शेयर खरीदना है, मुझे निकल जाना है अभी के अभी, मुझे दूसरे काम है। इफ दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर वी कॉल इट एज ए मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल कहाँ, जहां पे तुमको राइट नाउ शेयर खरीद के निकल जाना है। IOC नहीं, IOC में भी इमीडिएट होता है, लेकिन IOC में तुम अपना प्राइस डालते हो कि मुझे ये प्राइस पे चाहिए। नो, मार्केट ऑर्डर मींस प्राइस मैं तय नहीं करूंगा, कौन तय करेगा, मार्केट। मार्केट प्राइस तय करेगा, जो भाव मार्केट दे रहा है आई एम ओके विद दैट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मार्केट ऑर्डर। प्राइस इज डिसाइडेड बाय मार्केट, नॉट बाय मी, करेक्ट। So this is known as a market order. Let me show you the market order. How would this help me to have a market order? Sorry. मैं ट्रेड नाउ में जाता हूँ, लुपिन सेल करने के लिए रखा मैंने, बाई की जगह पे लेट मी पुट इट फॉर अ सेल।
क्वांटिटी 1 रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू सेल इट एट अ मार्केट प्राइस, बट आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ इट वुड बी सोल्ड आउट एट मार्केट प्राइस. तो इसीलिए मैं ये डाल रहा हूँ आपके लिए. So I need to change this. हाँ, look at this. क्या लिखा है? प्राइस 0 is market order. अगर तुमको मार्केट ऑर्डर करना है ना, प्राइस 0 कर दे. એટલે પ્રાઇસ 0 એટલે નોટ ટુ વરી. હા, આપણું કઈ 0 પૈસામાં નહીં વેચાવાનું. 0 मतलब मुझे प्राइस से मतलब नहीं है, मार्केट को जो भाव में देना वो दे. एंड आई एम पंचिंग दिस ऑर्डर, आई एम प्लेसिंग दिस ऑर्डर. कन्फर्म ऑर्डर. लुक एट दैट. ऑर्डर प्राइस क्या डाला है मैंने? 0 रुपया. 0 रुपया એટલે શ્યોરલી નોટ ટુ વરી, 0 માં નહીં સેલ થશે. Processed. Order process. I got one acknowledgement. Again, let me take the screenshot of the same and I will be putting up that screenshot over here. यहाँ पे वापस से एक नया screenshot आपके सामने रख रहा हूँ. Let me crop that. मुझे एक acknowledgement message मिल गया है exchange की तरफ से. मुझे शेर खान ने भेजा. And now read this acknowledgement message dear. NSE trade confirm. क्या है? सेल 1 क्वांटिटी. क्या प्राइस पे? 944. मैंने क्या प्राइस डाला था? आई पंच 0 पर मैंने मार्केट ऑर्डर डाला था. यानी मैंने कहा मार्केट यानी एक्सचेंज को कि तू तय कर लेना जो बेस्ट अच्छा वाला प्राइस हो ना, मुझे वो अच्छा वाला प्राइस तेरे हिसाब से दे दे. तो उसने अच्छा वाला प्राइस 944 चल रहा था, उसने मुझे दे दिया 944. I hope I am clear what I am trying to make you understand. आप Yes, लोगों के चक्कर में मेरा एक लूपिंग चला गया है ना. एक लूपिंग मैंने बेच दिया ना आप लोगों को समझाने के चक्कर में. हाँ सर, थैंक यू सर. हाँ सर, थैंक यू सर. लॉस कौन मुझे पे करेगा बताओ? चलो डिवाइडेड बाय 42. હા તો કઈ વાંધો નહીં, તારે તો એ રીતે કરીને આપજે. બીજું શું, આવા ચક્કરમાં मैं लास्ट ईयर 360 रुपीज में SBI खरीदा था. तेरे एक सीनियर को समझाने के चक्कर में पिछले साल 360 रुपए में SBI खरीदा. आज भाव दिखाए ना क्या भाव चल रहा है? 193 है ना. એટલા રૂપિયા લેવાના બાકી છે મારે તારા જુનિયર જોડે, सीनियर जोड़े. Anyways, this is only the things which I can make you understand only through this practical work. હા, चिंता नहीं करतो દીકરા. લુપિન મારા જોડે 920 રૂપિયાનો છે એટલે I am happy with it. ચાલશે. Okay, so now let's okay, so this was a market order. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ऑर्डर में. इमेजिन करो मेरे पास लुपिन खरीद के पड़ा है. मैंने कहा मैंने आई थिंक if I'm not wrong मेरे पास 922 रुपीस के आसपास का लुपिन खरीद के मैंने पकड़ के रखा हुआ है. मेरे पास पड़ा है लुपिन का शेयर 922 रुपए में. अब आज लुपिन का प्राइस जो है वो मुझे अच्छा दिख रहा है. 944 रुपए हो गए हैं, बराबर. मैंने ऑर्डर तो रखा 951 में बिक जाए ये वो सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर दोपहर के बाद में 1:30 बजे के आसपास जब यूरोपियन मार्केट खुले और अपना मार्केट गिरना चालू हो गया और लुपिन का भाव घटने लग गया तो हमें लुपिन भाव से अज्यूम करो मेरे पास में 10 लुपिन के शेयर्स पड़े हैं 922 रुपए के प्राइस पे 922. हाँ, अगर लुपिन का भाव आज घट के 900 हो जाए क्या होगा? What will happen to me? 922 में मैंने खरीदी आज सुबह में जब लुपिन का प्राइस चल रहा था 922. 10 में से अब वो शेयर्स मुझे बेचने, एक शेयर बिक गया समझ लो 944 में. अभी भी 9 शेयर मेरे पास पड़े हैं. और अगर लुपिन का भाव 1:30 बजे मार्केट गिरना चालू हो गया और 900 हो गया लुपिन का प्राइस, what will happen to me? Profit, loss? Loss, sir. Loss होगा Wow, सर. loss. You will be at loss. हाँ, ऐसा मान लो कि ये एक शेयर भी नहीं बेचा, 10 शेयर मेरे हाथ में है, कितने रुपए का लॉस होगा? 10 शेयर मैंने 922 में खरीदे थे और 3:30 बजे लुपिन का भाव हो गया 900 रुपए. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ लॉस? 220. 220. 220. 22 into 10, 220. Perfect.
800 हो गया तो 1220। 1220। 700 हो गया तो 2220। 600 हो ગયા તો 3220. તમને લોકોને એવું લાગે કે સાહેબ એવું કંઈ થોડું થાય? દીકરા, તમે માર્કેટ હજી જોયું નથી, बराबर। वन सिंगल डे मैंने डॉक्टर रेडी करके एक इक्विटी शेयर है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है। उसके शेयर की कीमत 8,000 रुपए से 8,300 का भाव था। वन सिंगल डे में 8,300 वाला इक्विटी शेयर गिर के 2,100 हुआ था। वन सिंगल ट्रेडिंग डे, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे। सो कुछ भी हो सकता है। यू शुड नॉट प्रिज्यूम कि આવું થોડું થાય સાહેબ, બધું જ થાય। हाँ, this is a kind of a market where everything is possible, right? Anyways, coming back to, अगर भाव गिरता ही गया तो मेरा लॉस बढ़ता ही जाएगा, सिंपल। अब ऐसा मान के चलो कि मुझे मेरी लॉस बेरिंग कैपेसिटी है। मैंने ऐसा सोचा था कि साहब आज 500 रुपया लॉस था ना, स्पेक्युलेशन, जुआ खेलने आया था। अरे साहब आज 500 रुपए का लॉस हो ना लुपिन में तो चल जाएगा, पर 500 થી વધારે लॉस नहीं થવો જોઈએ। हाँ, 500 से ज्यादा का लॉस होगा तो यार पैसा नहीं है अपने पास ज्यादा। सो क्या कर सकता हूँ मैं? सुबह मैंने 922 रुपए में खरीदा है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 500 रुपए का लॉस हो तब तक मुझे चलेगा। क्या प्राइस पे 500 की लॉस होगी तो मुझे प्राइस, हाँ सॉरी, यस, स्टॉप लॉस कर देंगे सर। वो ठीक है। पहले तू प्राइस, कितने प्राइस पे लॉस होगा 500 रुपए का, वो तो मुझे बता बेटा। 872। 872, चलिए। सो 872 हो गया। अगर लुपिन घटते घटते नीचे नीचे आते आते आते, हाँ, तो मेरा तो 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे सॉरी, 500 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। मुझे 500 का नुकसान करने का, आई एम ओके विद 500 का नुकसान। अब निधि ने कुछ एक वर्ड यूज किया, अभी थोड़ा टेक्निकल वर्ड था, स्टॉप लॉस कर देंगे। थोड़ा उसको मैं लेमन टर्म्स में समझू, स्टॉप एंड लॉस, लॉस को स्टॉप कर दूंगा मैं। समझ पड़ी गई, बराबर છે। હવે કરાય કેવી રીતે? वो कैसे कर दूं मैं स्टॉप लॉस? कोई मुझे हेल्प करेगा? हाउ वुड आई स्टॉप लॉस? 500 રૂપિયાનો થી વધારે લોસ ન થવો જોઈએ, આપણે એન્શ્યોર કરવાનું। તો શું કરી શકાય? એકદમ લેમન ટર્મ્સ માં सर एक प्राइस को लिमिट, सर एक प्राइस डिसाइड કરીને એક પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરી મૂકશું આપણે કે આ 872 રૂપિયા ડિસાઇડેડ છે। 872 થાય એટલે આપણે કાઢીને વેચી દેવાનો। દીકરા, હું તો તારું 1 કલાક લેક્ચર લેવા અહીંયા બેસેલો છું। 1 કલાકમાં માર્કેટમાં ઉથલ પાથલ થઈ ગઈ તો मैंने तो प्राइस नक्की कर लिया 872 रुपए। वो कहीं 24 कलाक, मतलब मैं पूरा दिन उस मार्केट के सामने थोड़ी बैठूंगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब है, मेरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म हुई, 1.5 घंटे बाद बाहर निकला, ऊपर बाहर निकल के देखा तो लुपिन का प्राइस चल रहा था 672 रुपए। ले, क्या करूं? सर एक सेल ऑर्डर डालेंगे और उसके हाँ। अंदर स्टॉप लॉस में 842 की प्राइस डालेंगे। 70, हाँ वो तो ठीक है। પણ દીકરા, સેલ ઓર્ડર મૂકું હું અત્યારે, તો તારા હિસાબથી શું ભાવે સેલ થાય? मैं सर वापस फिर से आज आपको बाजू लुपिन, में चालतो था ना। मैं लुपिन दिखाता हूँ आपको, चलिए। लेट मी शो यू लुपिन। ये रहा प्राइस। अगर मैं सेल करने के लिए डालूं 872, तारा हिसाब से क्या भाव पे बिकेगा लुपिन अभी? चलिए डाल के देखते हैं, और क्या, एक लुपिन और कुर्बान आपके ऊपर। पहला लेट मी चेंज दिस। सर मार्केट ऑर्डर डालेंगे कि जैसे ये प्राइस पे आएगा बेच दो। हाँ, मैं दो सेकंड है बेटा, मैं इसको चेंज कर दूं पहले, क्योंकि आपको समझाने के चक्कर में शाम को मेरे पास लुपिन होगी, उससे ज्यादा बेच दिए होगी। चलो, ओके, फेयर इनफ। चलिए, हाँ, ये रहा लुपिन, ठीक है, ये है प्राइस। मुझे ऐसा इंश्योर करना है कि मैं लेक्चर ले रहा हूं या अपने काम में पड़ा हूं, पर 872 हो ना तो ये अपने आप में बिक जाए, तो शू करी शकाय?
मैं अगर अगर अभी फिलहाल 872 में सेल करने के लिए डालता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं क्या होता है। लुपिन सेल एक क्वांटिटी 872 872 क्लियर। and now I place the order. Let's see what happens. Confirm. I got a message. Let me print screen. Let me show you. Crop it. I want you only to read this message. Crop. Enlarge. Read it. क्या हो गया? मार्केट Sell प्राइस हो पे गया। गया। सर करंट प्राइस पे गया। सर करंट प्राइस पे गए वो तो करंट प्राइस पे चला गया। मुझे क्या भाव पे बेचना था? 872। हाँ, तो अगर मैंने 872 डाला, मार्केट ने उस ऑर्डर को देखा, और फिर मार्केट मुझ पे हंसा। अरे पगले, तुझे 872 में बेचना है ना, जो चीज तुझे 872 में बेचनी है वो मैं तुझे 944 में बेच के देता हूं, चल जा, खुश हो जा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मार्केट क्या कर रहा है? मैं आपको बड़ी लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमको जो चीज 872 में बेचनी है वही चीज अगर 944 में बिक जाए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम खुशी होते हैं ना कि हाँ 872 में वेचू तू ने ना बदले 944 में बेचाणु, मतलब 50-60 रुपए एक्स्ट्रा बेचाणु। मार्केट हम पे हंस दिया और हमारे लिए बेस्ट चीज करके दी। हमेशा मार्केट ऑप्टिमम प्राइस देता है आपको। हमें कहना था कि अरे पगले मार्केट, हमको ये नहीं करना था। मुझे समझ आता है कि मुझे उसी टाइम बेचना था जब एग्जैक्ट 872 आए, क्योंकि वहां मेरी लॉस होती थी। अदरवाइज तो मुझे तो ऐसा है कि आज तो लुपिन का भाव 1050 होने वाला है। मुझे 944 में नहीं बेचना था। मुझे अगर एग्जैक्ट 872 आता ना तो ही बेचना था, क्योंकि उस केस में मैं लॉस कर रहा हूं और मुझे लॉस 500 रुपए से ज्यादा, आई कैन नॉट बियर मोर देन 500 रुपए। 500 से ज्यादा लॉस में बियर नहीं कर सकता। सर हमने So- ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस में जो हमारे 842 डाला था वो नहीं किया था। ट्रिगर किया ही नहीं मैंने, स्टॉप लॉस ऑर्डर ही नहीं डाला। दिख रहा मैंने नॉर्मल ऑर्डर डाला है ना। मैंने जो ऑर्डर डाला ना वो मार्केट ऑर्डर डाला, मतलब नॉर्मल ऑर्डर डाला था। लुक एट दिस। वापस से मैं आ रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्वांटिटी 1 प्राइस 872, लेकिन इस बार मुझे टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो है उसको चेंज करना है। एंड आई वांट, मैं मार्केट को ऐसा बताऊं कि मुझे नॉर्मल ऑर्डर नहीं डालना है, तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर डालना है जिसको आई कॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इन अ सेंस, अगर उतनी अमाउंट का प्राइस हुआ तो ही मुझे अपना लॉस स्टॉप करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं वेट कर रहा हूं ना। मुझे आज लग रहा है लुपिन 1050 जाएगा, पक्का आज लुपिन 1050 जाएगा। मुझे बेचना नहीं है लुपिन, अभी प्रॉफिट नहीं बुक करना, मुझे 1050 पे बुकिंग करना है। सो व्हाट आई विल डू इज I have to put an order called stop loss order. And stop loss order matlab I have to put down the trigger price. Trigger price in a sense, अगर मैं ट्रिगर प्राइस 975 डाल रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने एक्सचेंज को कहा कि मेरा लुपिन बिकना चाहिए कब? जब प्राइस 872 और 875 के बीच में हो तब, not now. I repeat myself, I enter an order जहां पे मैंने मार्केट को बोल दिया कि तुझे 872 और 875 के बीच में ही बेचना है। मतलब तू अपना डिसीजन मत लेना, जैसा तूने अभी एक लुपिन के लिए मेरा कर दिया ना, है? तू अपना दिमाग मत लगाइयो भाई, मेरे दिमाग से चल। और अगर प्राइस 872 और 875 के बीच में हो तो ही लुपिन बिकना चाहिए, अभी नहीं। एंड नाउ लेट मी पुट द ऑर्डर। Click on this. I got something.
Let me take the print screen of the same. I'll be showing you the print screen. Let's see what happens. And now read this. क्या लिखा है? सी न्यू ऑर्डर कंफर्म, ऑर्डर हुआ, ट्रेड नहीं हुआ। क्या ऑर्डर कंफर्म किया उसने? सेल करना है 1 क्वांटिटी लुपिन 872 में, कंफर्म। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी नाउ। पिछली बार जब ट्रिगर प्राइस नहीं डाला, उसने नॉर्मल ऑर्डर समझ लिया, नॉर्मल ऑर्डर समझा तो हम पे हंस दिया कि जा बेटा तुझे 872 में बेचना है ना, मैं तुझे 944 में वो चीज बिकवा देता हूँ। उसने बेच दिया। मैंने कहा कि भाई तू जो कर रहा है उस हिसाब से नहीं, मुझे 872 मतलब आई वांट टू सेल ओनली एट 872, नॉट नाउ, दो इट इज 940। हाँ, मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ। मार्केट, यू आर स्टिल अ मशीन, आई एम अ मैन, एंड आई नो दैट आज तो प्राइस 1040 होने वाला है, मुझे वेट करनी है। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, मैं 1 घंटा लेक्चर लेने के लिए गया, पीछे आके फाइनेंस मिनिस्टर बैठ गए, इधर उधर कुछ बोल दिया, बोला लुपिन से दवाई बनेगी नहीं, हाँ, या लुपिन ने जो लोन लिया था पिछले महीने वो पे नहीं किया, और लुपिन का भाव धबाधब गिरने लगा। 1 घंटा लेक्चर लेके बाहर निकलूं और देखो लुपिन हो गया 600, अपनी तो बैंड बज जाएगी ना। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। इसलिए मैंने मार्केट को कहा कि अगर मैं तुझे देख भी नहीं रहा हूं ना, तो भी 872 आए ना तो मुझे पूछना मत, सीधा ट्रेड कर देना। यानी कि अब ये ऑर्डर मैंने मशीन में डाल के रखा है, मशीन अपने हिसाब से 872 आएगा, एनीवेयर बिटवीन 872 एंड 875 अपने आप मेरा लुपिन बेच देगा। मुझे पूछने भी नहीं आएगा, मुझे कॉल भी नहीं करेगा मेरा ब्रोकर। सेम वस्तु आप अपने ब्रोकर के साथ कर सकते हो। तुमने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं डाला, लेकिन ब्रोकर को कहा कि भाई तू મને ફોન કરજે, હે 870 આવે એટલે મને ફોન કરજે। તમે ક્લાસ લઈને બહાર નીકળો અને પછી પેલો ફોન ના આવ્યો હોય, તમને એમ થાય કે લે 870 નહીં આવ્યો હોય, પછી તમે જો 650 થઈ ગયો હોય, તમે બ્રોકરને ફોન કરો, અરે સાહેબ જવા દો ની, એટલા બધા ફોન આવતા હતા ને એ વખતે તો હું તમને ફોન જ નહીં કરી શકી। બસ हो गई बात खत्म। इसलिए बेस्ट चीज, ब्रोकर आदमी है, गलती कर सकता है, मशीन गलती नहीं करेगा। पहले से ऑर्डर डाल के बैठो, एंड दिस इज हाउ exchange will execute your another order, which is known as limit order. So as of now we limit order is जो price हमने डाला वो stop loss order, sorry. So market will execute your order when you exactly reach to the price of 872, and this kind of order is known as a stop loss order. Limit order मतलब जो मैं 951 का डाल के बैठा हूँ ना, सुबह से मैंने एक लिमिट डाल दी है, 951 આવે તો તમારે પ્રાઇસ આવે તો તમારે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું, ના આવે તો નહીં કરવાનું। That's it. So that is known as a limit order. मार्केट ऑर्डर यानी राइट नाउ मुझे खरीदना है, जो प्राइस चल रहा हो मार्केट तू डिसाइड कर, 0 डाल के डाल रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर यानी कोई भी प्राइस डाल दिया, वो प्राइस आएगा तो मैं बेचूंगा या खरीदूंगा, अदरवाइज नॉट। स्टॉप लॉस व्हेन आई वांट टू स्टॉप माय लॉस, राइट। एंड 2-3 अदर आर देयर, मैं फटाफट से समझा देता हूँ बिकॉज दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बट जीटीडी, गुड टिल डेट। गुड टिल डे मतलब मैं एक तारीख नक्की कर लूँ। कई बार ये जीटीडी, गुड टिल डे एंड गुड टिल डेट, ये दोनों सेम होते हैं। सो अगर मैं एक तारीख नक्की कर लूँ कि मैं जो ऑर्डर डाल रहा हूँ, वैसे क्या होगा, हमने देखा था कि ऑर्डर आज अगर डाला तो आज 3:30 बजे खत्म हो जाएगा, राइट। मैंने 3:30 સુધી खत्म ना करो है, आई वॉन्ट दैट ऑर्डर टू कीप विथ एक्सचेंज। मैं बोलूँ कि एक्सचेंज जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक कैंसिल ना हो। So this kind of order is known as GTT order and GTC order. Anyways, next time जब हम क्लास में आएंगे ना, so we will make you understand what is GTC and GTT order, and then with that we will finish it off with this module number 1, right? हाँ. So any questions for the day? कोई questions आपके पास हो? I know that I just crossed 1 o'clock. Any questions if you have? No? GTC and GTD we will make you understand
when we talk about, when we meet next time. Okay. So with this, we wind up for the day. Thank you. Thank you very much for the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.